semi-finals from Group 1 in the Super 12. It's New Zealand and England. I happen to be Shahzad Hassan Khan, and with me I'm lucky to have been joined by Miss Cass Naidu. Hello Cass, happy today? I think Alex Hales is happy. A hailstorm blowing through Sydney, knocking Australia out of the competition. It was a closer game than we thought it would be. I mean, it wasn't really, given the chances. I think what we really need to kind of look at is, because Rashid Bhai has always spoken about it, that how power play kind of plays the role of a decider, and that's what they did. I think England, scoring so much and so high in the power play kind of left out Sri Lanka thinking about what they could have done better. But there's one more gentleman over here inside the studios who's really happy today as well. I wonder who that could be. I think our audiences are already very well aware of it. But first up, ladies and gentlemen, I think what we need to do is take a good look at the match summary. Cass, why don't you do the honors? Yeah, let's have a look. Sri Lanka, they got off to a blistering start, but towards the end they absolutely faltered. From 80 for 2, they got just 61 in the last 10 and 5 for 25 in the last 5. In reply, England motored along 70 in the power play. They kind of stumbled a bit, but the calm of Stokes and a little bit of Sam Curran towards the end, getting them across the line. And Adil Rashid picking up player of the match. England winning by 4 wickets through to the semi-final. Exactly. Thank you very much for such a wonderful match summary, ladies and gentlemen. Obviously, for people within England and people who were supporting England will definitely take a sigh of relief today. But first up, let's introduce our amazing guest over here inside the PTV Sports Studios, all the way from South Africa, former cricketer and a current coach. Ladies and gentlemen, he is Mr. Lance Cruiser. I think that the energy is too high today. Fantastic. Well done. I'm going to take you home. You're going to get a free passport. Sunny Bolani. Yeah, that's what it is. उन्हीं के साथ खवातीनों ज़ात हमारे साथ मौजूद है. साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम, विकेट कीपर बैठा ये है मिस्टर राशिद लतीफ. अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई. वालेकुम सलाम शहजाद, कैसे हैं आप? राशिद भाई आप कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से. And last but not the least, ladies and gentlemen, happens to be one of the most amazing all-rounders the world has seen so far. And Aji, I think he's got his contract renewed. I think he re-signed it again as an assistant coach for Surrey, ladies and gentlemen, all the way from England. He is, but I'm going to say this first. Non-England dear khule game uko. Azhar Mahmood, assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम. Azhar bhai, congratulations. क्या कहा है ये तो बताओ. England आज बहुत अच्छा खेला है. Alhamdulillah, that's what we were looking forward to as well. तो ना चाहते हुए भी आपने वैसे इंग्लैंड का नाम ना लिया हो, लेकिन दिल आपका या आधा इंग्लैंड में है या पाकिस्तान में, ऐसे ही है? नहीं, I think 70% पाकिस्तान में है और 30%. ये आप इस वजह से कह रहे हैं because your wife is here now, तो 70% हो गया. I think that's why you're saying that, right? No, it's always there. It's always there. बट कुछ लोग आप जैसे लोग हैं वो ये समझते हैं कि उल्टा है, ये 70-30 है, पर ऐसा नहीं है. You can cause problems for him on social media. Every time I say something to him, it's just our chemistry. That's the way we are. He reacts to it. That's something I am unable to understand. Why do you react to when I have a banter with you? I like you, that's I like you too. Thank you very much and I have all the respect as well. Rashid भाई, सबसे अहम सवाल सबसे पहले, आदिल रशीद को क्यों मिला है प्लेयर ऑफ द मैच? यार मार तो लग रही थी इनकी. पावर प्ले में न्यू बॉल थे, बहुत अच्छा खेले. निशांका और जितने भी आने वाले प्लेयर थे उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की. 54 की पावर प्ले में पेस ऑफ हुई है. 8वें ओवर में 7वें ओवर में हुई है. 8वें ओवर आदिल रशीद आया, उसने 2 रन दिए हैं, 4 डॉट बॉल स्ट्रेट अवे. और इसमें अगर देखेंगे हमने पहली बॉल उसने 91 पे की, दूसरी 89 पे. उसके बाद उसने और स्लो करता चला गया. वो 82 83 पे करता रहा. लेकिन हम प्रीवियस मैचेस में जाएंगे वो 95 से ऊपर ही रहा. जो हमने सुबह बात की थी कि मैचेस में कि उनको ज्यादा विकेट्स नहीं मिले, ज्यादा रन दिए उन्होंने. बिल्कुल उनकी पेस ज्यादा थी, एयर में ज्यादा तेज कर रहे थे और लेंथ लाइन भी इनकी चेंज हुई, थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर आ गए ये. तो इसकी वजह से पहला ओवर 8वां ओवर किया इन्होंने. फिर 8वां ओवर करने के बाद फिर अगला ओवर शायद इन्होंने किया है छठा और 8वां किया. छठा ओवर करना इतना आसान नहीं था, 4 डॉट बॉल करना. तो उस वक्त जब ये बहुत ही अच्छा खेल रहे थे, तो उसके बाद अगर देखते हैं 8वां ओवर किया, उसमें इन्होंने 2 रन दिए. 8 तो तकरीबन ये 2 और 6 8 रन हो गए. फिर इनको 14वां और 16वां ओवर दिया, उसमें 4 रन दिए. तो गेम चेंज करने में इनका बड़ा, और वहां पे एक वाइटल विकेट भी लिए. तो इसकी वजह से शायद 16 रन दिया, 18 रन दिए होंगे इन्होंने 4 ओवर में, और गेम चेंज किया इन्होंने. जितवाया नहीं, गेम को चेंज किया इन फेवर ऑफ इंग्लैंड. इसकी वजह से मैन ऑफ द मैच दिया. एग्जैक्टली, इसी वजह से इनको मैन ऑफ द मैच दिया गया. बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, व्हाट वी डिड इन द प्री मैच ladies and gentlemen was actually setting up or kind of predicting that okay, that's going to be the power play score. So we really need to announce the winner. Obviously, ladies and gentlemen, the winner for power play happens to be Miss Cass Naidu. Cass, do you want a gift?
No, it's okay, because the main prize has been won by somebody else. So I'm just going to be that kind of, I'm almost there. One of the days I'm going to get it right. And the main prize, ladies and gentlemen, goes to Mr. Azhar Mahmood. You were the closer, Azhar bhai, once Well again. Thank you, sir. Thank you. एक ना बताऊं क्या, जीतने के बाद से टोपी पहनानी चाहिए। कैप। He does need that. कैप आपने फिर जानबूझ के कैप का ठीक है। वरना तो टोपियां पहनाने वाले मिल जाते हैं। We need Lance's cap from yesterday. That would be the player match. Yeah, we can certainly get that. लेकिन मैं अजहर भाई आपकी तरफ बढ़ता हूँ। Obviously हमने जैसे राशिद अली का जिक्र किया, उन्होंने छठे ओवर में आके उन्होंने काफी मुश्किल डाली श्रीलंका के हवाले से। फिर हम लिविंगस्टोन की बात करते हैं, हम 11वें ओवर की बात करते हैं स्टोक्स ने। तो आई थिंक दैट छठे और 7वें ओवर के बाद इंग्लैंड वाज एबल टू कर्टेल। अगर हम बॉलर यूटिलाइजेशन के हवाले से बात करते हैं, हाउ डू यू थिंक दैट द कैप्टन रियली डिड अ गुड जॉब टुडे? आई थिंक दैट्स जो पिच की सिचुएशन थी ना, उस हिसाब से आई थिंक के वो बहुत लेट लेके आए हैं। हम जो बात कर रहे थे कि पेस ऑफ करनी चाहिए अर्ली ऑन, और अगर आप पहला ओवर देखें उसमें आपको आइडिया हो जाता है, क्योंकि ये तीसरा मैच हो रहा था इस पिच पे, और अगर पेस ऑफ कर लेते, जैसे ही पेस ऑफ की आदिल ने आगे जो ओवर किया छठा ओवर, उस वक्त मोमेंटम श्रीलंका के हाथ में था, जिस तरह निशानका खेल रहा था उस वक्त, और आपको अंदाजा हो जाता है कि पेस ऑफ, जैसे उसने अपना सैम ने पहला एक ओवर किया उसमें 13 रन हुए, मार्क वुड ने पहला ओवर किया उसमें 17 रन हुए, तो उसको आपको आइडिया हो गया कि पेस पे यहाँ पे रन हो गए हैं। एंड थर्डली कि अडेप्ट जो करते हैं आप कंडीशन के हिसाब से, जिस तरह उन्होंने अडेप्ट किया, जब उसने बॉलिंग की उसके बाद से जो है ना वो वापस आए अपनी गेम में, बेन स्टोक आए, उन्होंने विकेट ली वहां पे। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई थिंक कि जो थोड़ा सा लेट अडेप्ट किया, लेकिन टुवर्ड्स द एंड जो लास्ट 10 ओवर थे वो बहुत जबरदस्त किए। आई थिंक क्रेडिट गोज टू सैम करन एज वेल, जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे हैं थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप, यू नो, आज के मैच में नहीं, थ्रू आउट द वर्ल्ड कप जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की है। आई थिंक जो नया रोल उनको मिला है जो एंड में बॉलिंग करने का, अगर आप देखें उससे पहले आई थिंक अगर 19 से लेके 21 तक उसको देखें तो उनका इकोनॉमी रेट जो है 10 पॉइंट समथिंग है डेथ ओवर्स में, और अभी जो है वो 8.6 है इस 2022 में जो है ना, तो विच शोज के वो अपने रोल के साथ जो है इंसाफ कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि लेफ्ट आर्म सीमर का जो है ना वो एंगल जो क्रिएट करते हैं, जैसे हमने आज भी देखा जो वाइड उन्होंने यॉर्कर किया उसके बाद, बिकॉज ही इज अ वेरी क्लेवर गाय। मुझे आज में जो एक बाउंड्री उसको लगी, अगर आप देखें, क्योंकि उसकी फील्ड जो सेट थी वो ऑफ स्टंप के बाहर सेट थी। अब हसरंगा जो है ना उन्होंने वॉक क्रॉस किया है और अपनी स्टंप्स उसको नजर आई हैं, लेकिन उसने क्या था कि लास्ट टाइम तक वो बैट्समैन को दे, उसने टारगेट किया स्टंप्स को। अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसने विकेट ली थी ऐसे, और आज वो उसका बैट लग गया, बाउंड्री होगी। तो इसका मतलब है कितना लेट तक वो बैट्समैन को जो है ना देख रहा होता है और फिर उस हिसाब से अपने बॉल को वार्म करता है। You know, moving on to Rashid bhai, I think for everybody who's tuned in, this is for the very first time, जितने भी लोग देख रहे हैं कि आज राशिद भाई भी कागज के ऊपर कुछ लिख के लाए हुए हैं। राशिद भाई, क्या चीज है जिसमें आप सबसे ज्यादा गौर कर रहे हैं? नहीं, देख रहा हूँ कि इंग्लैंड खेलेगा इंडिया से या इंडिया जीतेगा नहीं जीतेगा, वो उस पर काम कर रहा हूँ। उस पर तो सर अभी ये तो हो गया मैच, उस पर तो अभी होना है, उस पर तो अभी हम करेंगे, उस पर तो अभी हम भी दुआएं कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान का भी कुछ चांस बन रहा है या नहीं बन रहा, कहां पे बारिश हो रही है, उस पर हम आएंगे। जी जी। लेकिन जहां पे उन्होंने पार्टनरशिप्स की बात की, मेरा ख्याल है आई थिंक दैट वी हैव एक्सपेक्टेड टू मच फ्रॉम कुशाल मेंडिस की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि पथुम ने ऊपर से एक अच्छा स्टार्ट दिया, पावर प्ले में भी अच्छा खेल सके, पार्टनरशिप्स नहीं बिल्ड हो सकी। अगर पार्टनरशिप्स नहीं बिल्ड होती हैं तो आप स्ट्राइक पार्टनरशिप सिर्फ इस मैच में सिर्फ ओपनर्स की बिल्ड हुई है, नोट करें। 124 रन बने पावर प्ले में 12 ओवर में, जिसका आप रेट निकालेंगे तो 10.33 पे चला जाएगा। पूरे मैच का निकाल लें जरा, पूरे मैच में 283 रन बने, जिसमें से 7.07 बनता है या इतनी बनता है। अगर हम 12 ओवर माइनस कर देते हैं, 124 माइनस करते हैं, 159 रन है, तो 5 पॉइंट कुछ से ये सब ने रन बनाए। तो पावर प्ले का गेम था, इंग्लैंड ने बड़े क्लेवरली खेला, उनको आइडिया था कि बाद में रन नहीं बनेंगे। 13 मैच में उसका 142 इंटरनेशनल का स्ट्राइक रेट है, तो यूटिलाइज उसने अपने आप को ही किया, कप्तान को भी पीछे ही रखा। देखें ये होती है पार्टनरशिप। पिछले मैच में देखें, अगर बटलर मेन प्लेयर है, उसने 11 बॉल पे 10 रन बनाए, आज भी तकरीबन 11 बॉल पे 12 रन ही थे उसके, ऐसा ही। लेकिन एलेक्स हिल मैच को निकाल के ले गया। जब 70 रन हुए पावर प्ले में, तो रिमेनिंग हम देखेंगे रिमेनिंग कितने ओवर्स रह गए। 14 ओवर में 71 रह गए, तो 5 पॉइंट का रह गया, तो उसने गेम तो खत्म कर दिया था। बिल्कुल। तो आखिर में जीते इस वजह से कि आपको रिक्वायर्ड जो तो 5 ही था, और आखिरी ओवर में कितने चाहिए थे, 6 रन चाहिए थे। तो मेरे ख्याल से इस मैच का जो
हमारी तरफ से मैन ऑफ द मैच होना चाहिए, वो एलेक्स हेल होना चाहिए। 47 of 30 deliveries. Let's take a good look at it. एक रन लेके दिया है, तो ये भी हिट मार सकता था, जैसे लिविंगस्टन गलती करके गया ना, एक रन लेके इतना बिलीव था वॉक के ऊपर कि वो एक रन के ऊपर डिपेंड किया, और एक रन ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है कभी कभार इंटरनेशनल क्रिकेट में, और आज हम एक रन की वजह से आज बारिश का इंतजार कर रहे हैं। Exactly, ऐसे ही I think Rashid bhai has spoken the truth over here, where people still continue to ask us whether Pakistan's going to make it to the semis or not, and we keep on telling them that, please make sure that you have your faith intact. Anything can happen, and Pakistan obviously have a funny habit of bouncing back. We have seen that, them doing it against South Africa. But coming back to you, obviously got all the calculations. That's what Rashid bhai was doing. Imagine Let me see. 10.1, 7.1. I mean, he's the master over here. खवातीन ज़ात यहाँ पे एक और मौजू हमने छेड़ दिया कि आगे जब इंग्लैंड अब सेमीज की तैयारी में जाएगा, तो जैसे आज उन्होंने अपने प्लेइंग 11 को वैसे ही रिटेन किया कि आने वाले सेमीज में भी रिटेन करेंगे, जिसमें लैंस का कहना ये है, लैंस भाई का कहना ये है, लैंस भाई ये कहते हैं कि लिविंगस्टोन को भी हम ऊपर लेके आ सकते हैं, वरना फिर फिल सॉल्ट को भी लेके आ सकते हैं। और अभी हमने ये जो इंजरी की बात की है, ऑब्वियसली आई थिंक दे माइट बी काइंड ऑफ कंसिडरिंग समबडी एल्स टू कम इन एंड फिल इन फॉर हिम, राइट? We're going for a short break. Don't go anywhere. We'll be right back. Somebody needs to fill in our cups of tea. It's going to be a tough day for somebody else, because we have just been recently joined by us all the way from Australia, ladies and gentlemen, one of those gentlemen who for the very first time from Pakistan has actually received an honorary, or I think that, this is the highest position one cricketer can actually get, because he was representing Pakistan in the Pakistan games as well. But today, Ben Stokes did well, and he has been saying, why do we even play Ben Stokes? Ladies and gentlemen, all the way from Australia, he is the former skipper for Pakistan, Mohammad Hafiz. Hafiz bhai, assalamu alaikum, माजरत चाहता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। आपने खुद ही सारी बातें कर दी, तो मैंने क्या करनी है? आपसे अभी हमने करवानी है, उसके लिए अजहर भाई को तैयार रखा है। अजहर भाई, आप अपने सवाल हफीज भाई से पूछ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप ऑल वेल एंड वी मिसिंग यू हफीज भाई। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। अच्छी बात यह है कि कैसा चल रहा है ऑस्ट्रेलिया आपका? एंजॉय कर रहे हैं आप? जी सब अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, और कपल ऑफ डेज इन एडिलेड, और यहाँ जो बुरी खबर है वो ये है कि यहाँ पे जो कल का वेदर है वो बिल्कुल साफ है। अच्छी खबर एक और भी है कि आपने रास्ते में किसी से कोई चीज नहीं लेके खाई, ये भी बहुत अच्छी बात है, अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। ये मैंने कोशिश की है, वो जो आपने मुझे समझा के भेजा था ना, जैसे आपने मुझे समझा के भेजा था, मैंने वही कुछ किया है। क्या बात है हफीज भाई, क्या बात है। हफीज भाई, आज की गेम के हवाले से आपकी क्या राय है? आपके हमने पावर प्ले के और जो टोटल स्कोर था वो तो आपने भेज दिया था, लेकिन कैस आज और अजहर भाई बाजी ले गए हैं। आपको क्या लगता है कि श्रीलंका कैसे टर्न अराउंड कर सकता था? राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर कैस एंड अजहर भाई। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आज की गेम के ऊपर सबसे पहले आपकी क्या राय है? वेल, मैं ये समझता हूँ कि इंग्लैंड इज स्टिल नॉट प्लेइंग द वे दे आर प्लेइंग। यस, दे क्वालिफाई टू द नेक्स्ट राउंड, बट दिस इज नॉट व्हाट we have seen. We have watched them playing. Good for them that they qualify to the next stage, which is obviously again a knockout stage. But so far there are many questions on their lineup, their combination. I feel their middle order in the last couple of games is not firing enough, and also their bowling is not doing the job what they should do. Like they given the first 50 plus runs in the first power play. So I think that is the area where I still feel England, obviously, like I backed England all the way, because at the start of the tournament I thought the way they are playing, they will definitely go through the semis and they can make it to the final. But the proceedings so far, they feel like under pressure. They feel like went away from the mindset they were playing with. हफीज भाई, आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल एनालिसिस, और यही गुफ्तगू चल रही थी। लेकिन इस गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हम आपका पूरा चेहरा मुबारक नहीं देख सकते, बाल नहीं नजर आ रहे। अगर आप थोड़ा सा कैमरा टिल्ट अप करेंगे तो अच्छा लगेगा। थोड़ा सा पीछे अगर आप हो जाए तो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी अच्छा नजर आएगा। अभी जो हम ब्रेक पे जाने से पहले हमने गुफ्तगू की, उसमें लैंस भाई का कहना यह था कि अगर हम फिल सॉल्ट को लेके आते हैं या लिविंगस्टोन को ऊपर लेके आते हैं तो उनका बैटिंग ऑर्डर और तगड़ा हो सकता है। आपकी इस हवाले से क्या राय है? देखिए, मैं ये समझता हूं कि ये जो प्ले सभी एक ही जोन में आके ऑस्ट्रेलिया में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अगर आप हैरी ब्रूक को देखें तो उन्होंने भी कोई इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस नहीं दी
जो वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद, जब पाकिस्तान ने सीरीज खेली 7 मैचों की, उसमें बहुत इंपैक्टफुल इनिंग्स थी उनकी। लेकिन जब से वो ऑस्ट्रेलिया में आए हैं, सीम्स लाइक ही इज नॉट अडेप्टिंग द कंडीशंस वेल, और मुझे लगता है कि ये उनके लिए बड़ी जरूर है, क्योंकि दो उनके जो प्लेयर हैं उनका परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि एलेक्स हेल्स को हमने देखा पिछले 2 मैचेस में, बटलर को देखा, बेन स्टोक्स को आज ये देखा, परफॉर्म कर रहे हैं, वो उसी इंटेंट से खेल रहे हैं जो इंग्लैंड खेलना चाहती है जी। लेकिन जैसे जैसे उसके नीचे हम जाते हैं, जैसे 2 आउट होते हैं, तो हमें देखने को मिल रहा है कि दे आर नॉट प्लेइंग विद द मोमेंटम ऑफ द गेम, दे आर गोइंग अवे फ्रॉम द मोमेंटम गिवन बाय द ओपनर्स। तो ये एक कंसर्न होगा इनके लिए मूविंग फॉरवर्ड, और मुझे लगता है कि ये मैच तो बहुत अच्छा जीते। एक ऐसा मैच जो आसान था, अपने लिए पहले खुद मुश्किल किया और उसके बाद फिर उसको जीत तो गए, लेकिन ये कोई कन्विंसिंग विक्ट्री नहीं है जो एक नजर आ रही थी। सही। तो टू मी इसमें 2 चीजें जो हैं वो सामने आ सकती हैं। मुझे लगता है कि देखें, बैटिंग और तो किसी कैसे खेल रहे हैं, लेकिन मुझे अभी भी ये लगता है कि इनके जो माइंड सेट है, सिर्फ उसको चेंज करने की जरूरत है कि अगर ओपनर ऑल द वे अपने आप को इंटेंट के साथ खेल रहे हैं, तो मिडिल ऑर्डर भी उसी को कंटिन्यू करे। हमने ये देखा पाकिस्तान के केस में, पाकिस्तान की टीम ने जब इंटेंट के साथ क्रिकेट खेली, जब उनके 4 आउट हो गए थे, तो उसके बाद जब 11वें ओवर में, या मेरा ख्याल है 11वें ओवर में, उनके कप्तान ने नगीदी को गाया, तो अटैक किया नवाज ने जी। और उसके बाद हमने देखा कि वो जो अटैकिंग जोन, जब हमने क्रिकेट खेली तो हमने अच्छा रन किए और हमने 120 130 जो है आखिरी 10 ओवर में कर दिए। तो मुझे ये लगता है कि यही चीज मुझे अगर इंग्लैंड अप्लाई करे अपने खेल के अंदर, कि जिस इंटेंट के साथ वो शुरू कर रहे हैं उसी इंटेंट के साथ उनके मिडिल ऑर्डर भी खेले, तो जरूर ये वो इंग्लैंड होगी जिसको हम सब ने देखा। ये मेरा ख्याल है। हफीज भाई, मैं इसी बात के ऊपर वापस आता हूं, मैं जरा अजहर भाई की तरफ बढ़ना चाहता हूं। अजहर भाई, जो उन्होंने बात की, अब अगर पाकिस्तान की मिसाल दे रहे हैं, मेरा ख्याल है हफीज भाई ने जो बात की उसी के अंदर उनका जवाब भी है। जैसे हमने वर्ल्ड कप में देखा कि हमारा टॉप ऑर्डर तो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पाए। एक मेरे ख्याल है मोहम्मद रिजवान के 48 के 49 थे। अदरवाइज वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब मिडिल ऑर्डर तक पहुंची, देन दे डिड इट। हमने इफ्तिखार की बात करते हैं, शादाब की बात करते हैं, नवाज की बात करते हैं। तो इंग्लैंड के पर्सपेक्टिव से आपको लगता है कि हफीज भाई ठीक बात कर रहे हैं? देखिए, अगर इंटेंट की बात करें, लिविंगस्टन ने जो शॉट मारा वो इंटेंट ही था कि वो आके जिस तरह वो खेले हैं, अगर उनके बैट्समैनों को देखें जिस तरह वो आउट हुए हैं, तो उसमें इंटेंट ही आपको नजर आए। स्वाय अब बेन स्टोक्स के अलावा जो है ना, उन्होंने सेंसिबल इनिंग्स खेली, लेकिन बाकी जितने भी लोग आए उन्होंने आके शॉट खेलने की कोशिश की है। हाँ, पिच स्लो था जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हुई है, या जो वो रन नहीं बन सके, लेकिन उनका इंटेंट ठीक था। पहले 2 मैचेस में अगर आप देखें, पहले मैच में जो इंग्लैंड आयरलैंड वाला मैच था, या पहला मैच जो था, उसमें बहुत वो इंटेंट उस तरह नजर नहीं आया। लेकिन इन कंडीशन को भी आपने देखना होता है कि बॉल सीम हो रहा है, स्विंग हो रहा है, जैसे आज था कि बॉल स्पिन हो रहा था, वहां पे ग्रिप हो रहा था, तो इतना आसान नहीं है। अब जब हम बात करते हैं इंटेंट की कि यार उसको सेंसिबल शॉट खेलनी चाहिए, क्या जरूरत थी इस वक्त ऐसी शॉट खेलने की जब बंदा आउट हो जाए। जब ओवर द लाइन आप क्रॉस कर जाते हो, फिर आप कहते हैं यार कमाल है, बड़ा अच्छा खेला। तो इसमें ये चीज जो है वाह वाह लग जाए तो वाह वाह, नहीं लगे तो क्या हुआ। ऐसे ही मैं एक चीज सिर्फ अजहर भाई की एक ऐड कर दूं। ये हमने बहुत मिस की है। ताली होनी चाहिए इस बात के ऊपर, ऐड करने वाली बात हमने बहुत मिस की है। जी जरूर। आज वो मैं कहना चाह रहा था कि आज बेन स्टोक्स को मैन ऑफ द मैच नहीं दिया गया। मेरी समझ के मुताबिक आज के वो मैन ऑफ द मैच है। और मैं यही कह रहा हूं, इस ऐसी परफॉर्मेंस के बाद भी नहीं मिला तो फिर कब मिलेगा उसको मैन ऑफ द मैच? नहीं, ये देखें, ये ज्यूरी की अपनी मर्जी है, लेकिन मुझे लगता है कि आज जो जैसे उन्होंने मैच को जितवाया, बॉलिंग में भी उन्होंने अपना रोल प्ले किया। मेरा ख्याल है कि ठीक है, आदिल रशीद की भी बड़ा अच्छा इंपैक्टफुल उन्होंने ओवर किए, लेकिन मेरा ख्याल है कि आज के मैच के लिए अगर मैं चुनूं तो मैं बेन स्टोक्स को जो है मैन ऑफ द मैच। चलिए हम मैं और आप चुन लेते हैं कि उसके जो 34 मैच हो गए उसमें एक दफा मैन ऑफ द मैच हो गया वो। लेकिन वो गिनिया नहीं जाना। मैं जरा राशिद भाई से भी चाहता हूं कि राशिद भाई, जो हमने एक लाइनअप के ऊपर बात की है, जो उनके बैटिंग ऑर्डर के हवाले से बात की, आपको लगता है कि आप सेमीफाइनल में जाके उनको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, चेंज? क्योंकि अगर बाकी उनका मिडिल ऑर्डर देखते हैं, फोर्स करेगी चेंज, वैसे नहीं करेगी अपनी चेंज। ऑस्ट्रेलिया ने मिस्टेक की पिछले मैच में, नहीं करेगी मेरे ख्याल से। और अभी अगर फाइनल 9 या 10 को है तो चांसेस तो हैं फिट होने की। मलान बहुत क्रूशियल है इनके लिए, लास्ट 2-3 ईयर से परफॉर्मर है, बल्कि जनवरी में नंबर 1 प्लेयर था वो आईसीसी का। तो
जल्दी वो बाहर चले गए थे जी। थोड़ा सा निकल हुआ था वो बाहर चले गए तो होपफुली कि वो आ जाएं वापस। और अगर हम इसी को कंसिडर करें तो इंग्लैंड गालिबन किसके साथ सेमीफाइनल खेल रहा होगा सर? वो कल पता चलेगा। जिम्बाब्वे अगर जीत गया तो डिफरेंट हो जाएगा ना, टुगेदर डिफरेंट हो जाएगा। अभी तो आप दोनों पहलू में। दोनों पहले हफीज से सवाल। हाँ जी हफीज भाई एक तो ये तो बारिशों का मामला था, आपने जरूर सवाल उठाया होगा। दूसरा आज जो मैच था, चौथा मैच था इस पिच पर, और जब पिच रिपोर्ट हो रही थी 22 से निशान थे, तो क्या ऐसी पिचेस पे इतना इंपॉर्टेंट मैच होना चाहिए? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर हम आईसीसी T20 की पूरी हिस्ट्री देखें तो हमेशा है कि जो ग्राउंडमैन है उन्होंने एक पिच के ऊपर जहां पे 2-2 दिन जब ले रहे हैं या डबल हेडर, तो उन्होंने डबल हेडर या अगले दिन भी उसी पिच के ऊपर जो है मैच करवाया। तो जैसे था 2012 वर्ल्ड कप का श्रीलंका के अंदर, वहां पे ऐसा हुआ कि जब हम लोग वहां खेल रहे थे तो इतनी वो मुश्किल थी कि पहले बारी लेते हुए आपसे नहीं खेला जा रहा था। तो ये समटाइम जो T20 के अंदर है, ये एक कॉम्प्रोमाइज किस्म की जो है सिचुएशन दी जाती है, जिसके अंदर जो क्यूरेटर हैं वो बार बार पिचेस नहीं बनाते। ये ऑब्वियसली बेहतर हो सकता है, लेकिन एंड ऑफ द डे जो भी चीजें कंडीशन मिलती है वो दोनों टीमों को मिलती है। जहां पे दुनिया भर में आई थिंक जो भी टीमें वो ऑस्ट्रेलिया में जाके खेलने से घबराती हैं, दैट टू अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वहीं पे ऑस्ट्रेलिया को इस तरह से हारता हुआ देखना कि वर्ल्ड कप के अंदर वो डिफेंड नहीं कर पाए, डिफेंडिंग चैंपियंस। लेकिन हफीज भाई मैं पूछना चाहता हूं कि आपको माशाल्लाह ये इतना बड़ा ऑनर अल्लाह मियां ने अता किया, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने गए आईसीसी की जानिब से, आपने क्या उनके सामने कोई बातें रखी आईसीसी कमेटी के सामने, कोई आपने बात की उनसे, कोई पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से कोई गुफ्तगू हुई, सफर कैसा रहा आपका, कुछ रोशनी डालना चाहेंगे प्लीज? नहीं, देखें, जो पहला मेरा दिन था इनके साथ ऑफिशियली, उसके अंदर तो मेरी मीटिंग्स हुई, लेकिन आप स्ट्रेट अवे अपनी तमाम वो चीजें जो आपके दिल में दिमाग में हैं वो नहीं बोल सकते। उसकी वजह होती है कि कोई स्टेज आए, कोई जगह आए, वहां पे जरूर आप उसको एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन फर्स्ट मीटिंग वाज ऑल अबाउट मीटिंग सम ऑफ द ऑफिशियल्स। फर्स्ट डे वाज ऑल अबाउट एडिंग वैल्यू इनटू द टूर्नामेंट, जहां पे भी मुझे उनको लगा कि मैंने उनके लिए जो मेरी एक पूरा राउंड उन्होंने सेट किया था, राउंड अप के मैंने ये चीजें करनी है। But for surely I'm going to hit that point. Or let's see. You can always give suggestions. और फिर वहां पे जो भी उनको समझ आएगा, एंड ऑफ द डे दे आल्सो मेक द डिसीजंस अकॉर्डिंग टू देयर ओन माइंडसेट एंड जजमेंट, क्योंकि वो एक हेड अथॉरिटी हैं क्रिकेट को चलाने के लिए, और उनके जो फैसले होते हैं आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते अनटिल अनलेस कि वो खुद चाहें कि इसको वो चेंज करना चाहें। मुझे ये लगता है कि ओवरऑल मेरे लिए बड़ी इज्जत का जो है ये मुकाम है। टू बी ऑनेस्ट, लोगों ने बहुत मोहब्बत की, यहाँ के जो पाकिस्तानी फैंस हैं उनको बहुत पसंद आया ये मेरा आना यहाँ पे, और समहाउ मुझे इसको लकी चार्म के तौर पर कंसीडर किया जा रहा है, लेकिन ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। मेरी दुआएं पहले भी पाकिस्तान टीम के साथ थी और अब भी हैं। अनफॉर्चुनेटली आई थिंक एक और चीज अभी अजहर भाई ने बात की, वो बिल्कुल ठीक बात है कि पाकिस्तान हमेशा की एक टेंडेंसी रही है, वो ये है कि हम लोग स्लो स्टार्टर हैं, और आई थिंक इस वक्त पाकिस्तान का वो पीक टाइम स्टार्ट हुआ है जिसको पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ मुंसलिक किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग रिलाई कर रहे हैं कल के 2 मैचेस के रिजल्ट के ऊपर। ऑब्वियसली हमने अपना मैच तो पहले जीतना ही है, लेकिन दूसरे मैचों का भी है। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक चीज है जिसको हमें एज ए पाकिस्तानी काम करने की जरूरत है कि हम अपना जो आखिरी मैच खेलते हैं वो पहला समझ के खेलें। सही बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया हफीज भाई। जाते जाते सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि वापसी पे भी किसी से कोई चीज लेके नहीं खानी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, क्योंकि मैंने वापस आपके पास आना है इंशाल्लाह। और कब आपकी इंशाल्लाह वापसी होगी, कब हमारे व्यूअर्स आपको स्टूडियो में देख सकेंगे, बताएंगे प्लीज? बट नेक्स्ट जो सेमीफाइनल इंशाल्लाह वो आप लोगों के साथ, अजहर भाई के बिल्कुल साथ, इनको पॉप करूंगा व्हेन इंग्लैंड विल नॉट डू वेल। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। लवली टू बी इन कॉन्वर्सेशन। हो गई बात? जी जी सर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गई, अफसोस तो हो रहा होगा सबको जी, ठीक है ना। लेकिन रीजन मेरे ख्याल से कोच का चेंज होना, जस्टिन लैंगर का आफ्टर वर्ल्ड कप 2021, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो एक तरह के बड़ा बदमाश कोच है कह सकते हैं ना ड्रेसिंग रूम में, और इनके टीम को प्लेयर्स को देखें कौन कौन है, उसमें स्ट्रांग कैरेक्टर चाहिए, वो जस्टिन लैंगर था। और जब पहले भी बॉल टेम्परिंग का केप टाउन इंसिडेंट हुआ, उसके बाद आके संभाला किसने? जस्टिन लैंगर ने आया। 2-3 कोचेज और थे, रिकी पॉन्टिंग था।
लेकिन जिस तरह से एशेज 2 दफा इसने चैंपियन हुआ, जीती और 21 के वर्ल्ड कप में रहा, तो मेरे ख्याल से वो एक इंसिडेंट ऐसा है